यू कान कम टू कैनेडा। कनाडा में अब स्टडी परमिट वालों की कोई वैल्यू नहीं है, तुमको पीआर नहीं मिलेगी। टू गिव यू अ रियल पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे जॉब्स का इशू, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी अलोन इन द स्टार्ट, दे रश इन टू फ्रेंडशिप। लिटरली उठ भी पाऊँ, माई बॉडी वॉज गॉट सो वीक and I was going through so much. And then hi guys, welcome back to my channel. My name is Shreya Dikshit and I'm an international student here in Canada. I do make a lot of videos about the Canadian student study process and my day-to-day general life in Canada. So if you're interested in both of these things or either one of this thing, consider subscribing. Now in Canada मुझे 6 महीने हो गए हैं आए हुए Canada में. And in these 6 months, more than 6 months, I have learned a lot of things. And in today's video, we are going to discuss about the specific expectations that an international student comes with to Canada and what the reality actually is. Trust me, it's not going to be a negative video saying that everything is changed, you know you can't come to Canada. कनाडा में अब स्टडी परमिट वालों की कोई वैल्यू नहीं है, तुमको पीआर नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें आई एम नॉट गोना डिस्कस बिकॉज आई एम गोना गिव यू अ रियल पिक्चर so that you guys, especially people who are coming in May intake, can decide whether or not this is the right way for them or not. Okay, so without any further ado, let's get started. General idea of Canada comes into a person's mind through their relatives, through their friends, study counselors and most often YouTube. सभी सोर्सेस से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो काफ़ी अलग होती है जो रियलिटी होती है उससे. आई एम ऑल्सो ऑन यूट्यूब, सो यू कैन से कि ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है. बट आई थिंक यूट्यूब पे इफ़ अ स्टूडेंट इज़ टेलिंग यू समथिंग, इट्स द मोस्ट क्लोजेस्ट real picture to what is actually happening. Not only for me, I am talking generally. Okay, first topic I want to discuss is jobs. Okay, there's a set expectation that once you land in Canada you will get a job, a part-time job or a full-time job, but you'll get a job, right? And in the past year you must have seen a lot of videos. There were videos by me also of a job hunt that I went to give you a real idea of what the situation is now. Yes, to give you a real point of view, यहाँ पे jobs का issue है for now, but are few people, there are few lucky ones who आप land करोगे, आप अपने effort डालोगे and you will get the job within like 2 days, 7 days. I've got, मैं जब यहाँ land हुई थी मैंने videos देखी थी, लोगों को 7 दिन में job मिल गई, you know, 2 दिन में जॉब मिल गई. आई गॉट टू नो माई फ्रेंड्स हु गॉट जॉब विद इन लाइक द 1 week ऑफ बीइंग हियर, दे गॉट द जॉब. वेयर एज काफ़ी लोगों को वो जॉब नहीं मिलती है बिकॉज कई जगह आपका लक भी फैक्टर होता है, आपके एफर्ट भी फैक्टर होते हैं, आपका टाइम भी फैक्टर होता है, राइट? सिमिलरली सेम चीज़ यहाँ पे होती है, बट फॉर मे इनटेक स्पेसिफिकली आई वुड से कि जॉब्स की कमी नहीं होगी because summer है and I am right now here and I see so many hiring for summer. Canada Wonderland यहाँ पे hiring कर रहा है, बड़ी बड़ी firms इस वक्त mass recruiting कर रही हैं. So if you are here in summer then probably you won't face such big issue, but yes, you have to consider the fact that you have to put in your effort. अगर एफ़र्ट नहीं डालोगे तो जॉब नहीं मिलेगी. अगर आप लोगों को मेरी जॉब हंट वाली वीडियो आप लोगों ने देखी हो तो उस टाइम पे मुझे लिजिट आई थिंक सो 2 या 3 दिन हुए थे. मेरी पास्ट जॉब जो सीजनल जॉब थी वो गई थी एंड फिर मैं जॉब हंट पे गई थी एंड विद इन दैट जॉब हंट आई गॉट अ जॉब. सो मैं उसी के बाद से जॉब कर रही थी. तो वो जो ट्रांजिशन होता है फॉर अ वीक और 2, वो ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा जब हाँ आपको वो वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपकी अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट एंड स्मार्ट वर्क पे कि आप जॉब ले पाते हो नहीं ले पाते हो. लेकिन आप अगर वो चीज़ ढंग से करते हो तो आपको जॉब मिल जाती है. स्पेशली सीजनल जॉब्स आपको
कंपैरेटिवली आसानी से मिलेंगी, बट आई वुड से सीजनल पे ज़्यादा एफर्ट डालोगे तो वो परमानेंट भी हो जाती है, बट ऑल्सो स्टार्टिंग में अगर परमानेंट जॉब्स के लिए लुकआउट करोगे तो ये जो प्रॉब्लम है कि सीजनल टाइम पे जॉब जाएगी वो आगे नहीं आएगी. सो फॉर मे इनटेक माई सजेशन वुड बी, गाइज डोंट बी अफ्रेड. Obviously you guys are going to get job, everybody here gets a job, it's not like you don't get a job. Yes, everybody has a different journey. Some people get a job within the first week, some people get it in 2 months, some people get it and then lose it somehow, but we all get jobs. Okay, expectation सही है कि हाँ यहाँ के जॉब मिल जाएगी. गलत चीज़ बस ये है कि एक हफ्ते में मिलेगी, तुरंत मिल जाएगी, ये टाइम फ्रेम मत रखो. थिंग इज कैनेडियन वेदर. ओके, सो कैनेडियन वेदर की एक्सपेक्टेशन ये थी कि ओ माई गॉड इट्स गोना बी टू कोल्ड, इट्स गोना बी आई डोंट नो वेरी हार्श विंटर्स. एंड इस चीज़ में कोई झूठ नहीं है. हाँ, कनाडा में विंटर्स बहुत हार्श होती हैं. जब स्नो स्टॉर्म आता है तो लेजिट बाहर निकलने के बाद भी नी लेंथ तक आपके स्नो भरी रहती है एंड इट्स वेरी हार्ड टू इवन वॉक. मेरा जब फर्स्ट स्नो स्टॉर्म आया था, मैं काम से वापस आ रही थी एंड इट वॉज लिजिट लाइक 2 मिनट वॉक जो मुझे बस स्टैंड से अपने घर तक लेनी पड़ती है, बट वो 2 मिनट वॉक मेरे लिए 10 मिनट की वॉक हो गई थी, और वो भी बहुत मुश्किल से 10-15 मिनट्स की वॉक मैं करके घर आई थी, और घर भी पूरा बर्फ़ से बंद था ऐसे ऊपर तक. सो यू नो वेदर इज हार्श, बट टू आवर सरप्राइज, आई डोंट नो, वी वर द lucky ones, unlucky ones, I don't know, we didn't get that winter that we were expecting. In fact, in इस बार कनाडा में there were only like in Toronto, in the area that I live, only 2 snowstorms were there. So ज़्यादा winter का मुझे issue नहीं आया, like snow का मुझे issue नहीं आया. Coming to the reality of things, यहाँ पे problem winter नहीं है, यहाँ पे problem wind है. So I was not prepared for the amount of wind that Canada has. इतनी strong wind होती है ना कि मैं weather से पहले यहाँ पे weather app पे, honestly मैंने इंडिया में लाइफ में कभी weather app generally खोला ही नहीं है until unless it's an alert or something, notification pops up or something. I've never opened a weather app in India, whereas in Canada मैं सबसे पहले सुबह उठ के वेदर ऐप ही चेक करती हूँ. नॉट बिकॉज मुझे वेदर का टेम्परेचर मेनली देखना होता है, मुझे देखना होता है कि विंड किस स्पीड से चल रही है, क्योंकि विंड की स्पीड से आपका फील्स लाइक डिसाइड होता है. और कई बार वो विंड के बाद भी वो फील्स लाइक इतना हार्श होता है, चाहे यहाँ पे गर्मियाँ हो चाहे यहाँ पे सर्दियाँ हो, आपके ऊपर जब विंड पड़ेगी ना कस के, तो it would be 2x of everything. If it is गर्मी, then it will be extreme गर्मी that you will feel. If it is ठंड, then you will feel extreme ठंड. And it's like Canada is so open, so windy that it is really hard for winters. मेरे लिए सबसे हार्श चीज़ वही थी, स्पेशली जब सीज़न चेंज होते हैं. तो हमारी जो मॉम होती है घर पे, उन लोगों को जो कंसर्न होता है कि यू नो इतनी दूर जा रही है, वहाँ पे ठंड होती है, वहाँ पे स्नो होती है, सबसे ज़्यादा कंसर्न उन्हें यही होगा कि भाई वहाँ पे अब यही होना चाहिए कि वहाँ पे बहुत विंड होगी, तो जो आपके ईयर कफ्स वो आते हैं ना, ईयर कफ्स आई थिंक हाँ ईयर कफ्स आते हैं ना, वैसी चीज़ें, कैप्स एंड मफलर्स वो ज़रूर रखना, बिकॉज अगर गर्मियों में भी आ रहे हो ना तो भी विंड तो बहुत होगी, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट इफ़ यू आर कमिंग इन मे. अगेन मे में आ रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग कि तुम सितंबर से पहले या नवंबर से पहले घर वापस तो नहीं जा रहे हो. उस टाइम पे आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा बुरा कनाडा का वेदर तभी देखा है फॉर मी. आई टेल यू वाई, बिकॉज उस टाइम पे ना सीज़न चेंज होता है, सो यू आर ट्रांजिशनिंग एंड द फर्स्ट टाइम यू आर हैंडलिंग दिस सीजनल चेंज. तो उस टाइम पे ना ये चीज़ें और ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करती हैं. लाइक फॉर मी within November I got sick. October to November I felt terribly sick 4 times, and by the end of November I didn't had it in me कि मैं literally उठ भी पाऊँ. My body got so weak and I was going through so much, and then on top of it there was shifts, there was work, there were assignments, so वो बहुत ज़्यादा hectic हो गया था. So उस seasonal change में I know weather would look amazing, you want to go out, but just take care of yourself. This is around Halloween and everything I'm talking about. That is the worst time to fall sick honestly, because वो seasonal time होता है, jobs के लिए भी सबसे important होता है, and वही time होता है जब बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से बीमार पड़ते हैं.
आई रिमेंबर, मतलब इफ़ इट वॉज नॉट फॉर माई फ्रेंड्स आई वुड हैव नॉट सर्वाइव दैट टाइम. मैंने अपनी लाइफ में सबसे गंदी बीमार मुझे लगता है मैं तभी पड़ी. बी केयरफुल व्हेन द सीजन इज आर चेंजिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर विंटर्स and be prepared for snow and be prepared for wind. We all are youngsters, we all are either graduated or you know have like are going to graduate. वो आपकी expectation होती है कि you will have a a very big group and you will socialize, you will have friends, you will build that. So in this expectation there is nothing wrong, but all I can give you as a personal tip is that I've seen a lot of people in the start just don't, because they don't want to be alone in the start, they rush into friendships, they rush into making friends, and then thereafter share their accommodation also with them, and later on what happen is that आपने उस फ्रेंडशिप को उतना टाइम ही नहीं दिया, आपने उस बंदे को उतना टाइम ही नहीं दिया, ऑब्जर्व ही नहीं किया कि जब आपकी फ्रेंडशिप उसके साथ उतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड ही नहीं हुई, आप उसके साथ मूव इन कर गए, एंड देन फिर बाद में there will be terrible outcomes, you will fight, there will be arguments, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल आपको नहीं जमती, उसकी आइडियोलॉजी आपको नहीं जमती, आप दोनों में क्लैशेस हो रहे हैं, एंड दैट ऑनेस्टली अफेक्ट्स योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल. योर पर्सनल लाइफ हियर इज़ नॉट ओनली योर पर्सनल लाइफ, बिकॉज वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे आएगा ही आएगा, बिकॉज आप अकेले इंसान हो अपनी दोनों स्फेयर को संभालने वाले, एंड आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होगा ना तो कहीं ना कहीं आपकी तबीयत ख़राब हो, आपकी किसी से नहीं बन रही, आपकी ओवरऑल मोटिवेशन ड्रेन आउट हो जाएगी. आई हैव सीन सो मैनी फ्रेंड्स ऑफ माइन हु जस्ट randomly went into a friendship because they didn't wanted to be alone, and then suddenly वो बड़े ग्रुप के साथ स्टार्टिंग में हैंग आउट करे, सब हो रहा है, एंड लेटर ऑन दे आर फाइंडिंग दैट even if I have this big of a group, I don't have people to rely on. And that is the terrible feeling. Be very honest, आज के टाइम पे आप लोग मेरे व्लॉग्स में मेरे फ्रेंड्स देखते हो, जो कि बाय द वे 3 दोस्त हैं, आपको वही 3 यूजुअली दिखते रहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया. ऐसा नहीं कि मैं एकदम ही मैं अकेली थी, एंड येस आई स्पेंड लाइक मंथ्स अलोन इन माई बेसमेंट, but I didn't rush into friendship. Obviously you have to be friendly with everybody, but that does not mean that you will hang out with everybody, right? So because उस hang out के साथ आपके ऊपर एक pressure भी आ जाता है, तो उस चीज़ को avoid करो, and take your time. You are here to make good friends, and you are here to time है, ऐसा नहीं है कि रन आउट कर रहा है. तो धीरे धीरे लोगों को जानो, पहचानो, एंड वंस यू स्टार्ट बिल्डिंग, बी ओपन टू एवरीबडी, बी पॉजिटिव टुवर्ड्स एवरीबडी, बी फ्रेंडली टुवर्ड्स एवरीबडी, बट टेक योर टाइम एंड देन डिसाइड दैट ओके he or she is somebody I can rely on and trust them, and then you will obviously have good friends to hang out, and I hope कि सबको अच्छे दोस्त मिले जैसे मुझे मिले हुए हैं. टच वुड. Next point is related to this only, our expectation of a luxurious lifestyle once we land in Canada. Okay, this comes with both. मेरे दोस्त ने आईफोन ले लिया है, मैं भी ले लूँगी. मेरे एक फ्रेंड ने गाड़ी ले ली है, मैं भी ले लूँगी. मेरे फ्रेंड के पास एयरपॉड्स आ गए हैं, मैं भी ले लूँगी. कवर खरीद लिया, मैं भी कर लूँगी. वो बाहर जा रहे हैं, मैं भी चली जाती हूँ. अरे यार, मैं ग्रुप को थोड़ी छोड़ सकती हूँ. सो ऑल दीज थिंग्स व्हाट हैपन्स इज क्रिएट्स एन अननेसेसरी प्रेशर ऑन यू. प्लस यू हैव योर एक्सपेक्टेशन कि कनाडा जाते ही ये सब ले लूँगी, तो वो एक्सपेक्टेशन भी होती है. इन चीज़ों को अवॉइड करना है, बिकॉज वट एवर दे शो यू कि 0 EMI पे आप गाड़ी उठा लो, 0% EMI पे 0 इंटरेस्ट EMI पे आपको फ़ोन मिल रहा है, फ़ोन तो फ्री है. दिस इज़ नॉट ऑल ट्रू. आपको मैंने लास्ट वीडियो मेरी जो आईफोन जब हमने डीना के लिए आईफोन ख़रीदा था, उसमें मैंने आपको लास्ट में पूरा एक्सप्लेन किया हाउ मच इट कॉस्ट एक्चुअली, फ़ोन की क्या कॉस्टिंग आई है, जबकि उसके टेक्निकली प्लान में उसको भी फ़ोन फ्री में मिला है. बट इट इज़ नॉट फ्री, it's a price that you pay for 2 years, and it all affects your credit score also.
तो बी वेयर ऑफ ऑल दी स्कीम, नथिंग इज फ्री। कोई यहाँ पे आपका चाचा नहीं बैठा है, कोई आपका रिलेटिव नहीं लगा है जो आपको फ्री में चीज़ें देगा, ठीक है। तो अपग्रेड करनी है लाइफ, आई गेट इट, स्लोली एंड स्टडीली स्टार्ट टू अपग्रेड योर लाइफ स्टाइल, डोंट जस्ट रश इन टू थिंग्स। मुझे 1 साल होने जा रहा है, मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं लिया है, ठीक है। मेरा बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल है, टच वुड, एंड किसी भी तरीके से लेस नहीं है, ना मैं किसी के प्रेशर में हूँ इन चीज़ों को लेके। एंड आई वुड से दिस इज़ द वे टू गो, वे टू लिव हियर फॉर एटलीस्ट योर इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ, बिकॉज बहुत छोटा पीरियड है, स्ट्रगल करना है। बट स्ट्रगल से ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल अपना बेसिक लाइफस्टाइल भी नहीं बनाना है, बेसिक लाइफस्टाइल बनाना है, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है और फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना है। सो इफ़ दीज 3 थिंग्स यू कीप काउंट ऑफ, तो आप सही डायरेक्शन में रहोगे। सो लग्जूरियस लाइफस्टाइल इज़ एक्सपेक्टेशन, बट रियलिटी इज़ it comes with a very high price, so avoid it as much as possible, live a good lifestyle। luxurious के लिए टाइम मिल जाएगा, मनी भी आ जाएगी, पैसे भी आ जाएंगे। यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें, एक्सपेक्टेशन ये है कि कुछ सेट एक्सपेक्टेशन है ऑफ डूइंग थिंग्स, यू नो, ऑफ कि ये काम करना है उसके बाद ये करना है एंड देन दिस वुड बी योर वे आउट, क्योंकि सब यही कर रहे हैं। रियलिटी इज़ योर वे आउट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन, बिकॉज तुम्हारी स्टोरी अलग है, उसकी स्टोरी अलग है, उसकी प्रायोरिटी अलग है, तुम्हारी प्रायोरिटी अलग है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ओनली डूइंग अ 1 year कोर्स, a lot of my friends are doing 2 year courses. So whenever other person asks me ki, you know, you're doing a 2nd year course, or you know, and then I say no, then they go in shock. They're like, oh, 2nd year का कोर्स नहीं कर, तुम्हें PR नहीं चाहिए? So just don't get pressurized under that situation. तुमने डिसाइड किया है कि तुम यहाँ आओगे, तुमने डिसाइड किया है कि तुम 1 साल का कोर्स कर रहे हो या 2 साल का कोर्स कर रहे हो, वो तुम्हारी चॉइस है। तो उस पर रिग्रेट नहीं करना, उसको क्वेश्चन नहीं करना, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना। तुम्हारे खुद के पर्सनल रीज़न होंगे जिसकी वजह से तुम वो डिसीजन ले रहे हो। तुमने रिसर्च करी है, उस बंदे ने नहीं करी है, या उसकी अलग रिसर्च है। Don't go by what people tell you. Don't go just by what your counselor is telling you or what you heard on a YouTube video, even mine. Just do your research, and this is what I always say, that do your own research. Talk to 10 people and then go in a room and then think it through what you thought, and then decide what you think is best for you. And yeah, that is what I keep on saying, and I will say it again, think it through. And lastly मैं यही बोलूँगी कि यहाँ के लिए मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। काफ़ी चीज़ें इधर उधर होती हैं, हो जान दो, इट्स ओके। यू आर हियर, बी ग्रेटफुल एंड keep your focus on one thing, why you are here। सबका रीज़न अलग होता है, तुम्हारा कुछ और होगा कि तुम यहाँ पे क्यों हो, बस उस पर फोकस करो and keep working for it, okay? In my 6 months of being here, I have learned personally so much. I have never had so much patience. I have never in my life, within the period of 6 months, have so many rejections, and then had the capacity to wake up again and, you know, stand again and start working in that direction again. So that's what Canada prepares you for. Canada is not merely a study abroad destination, बस आओ पढ़ो मज़े करो चले जाओ. It's about changing the entire lifestyle and the choices that you had and the principles of your life. You are building your foundation now, you're building your values now, you're learning key qualities of your lifestyle, that is patience, that is tolerance, that is working again and again, that is dealing with failures and working again for success. That is what Canada is about for me, and I hope that I'm able to help you guys as well with this video. If I did, then please consider subscribing, commenting. I know a lot of you guys watch my videos but don't comment, so थोड़ी मोटिवेशन मैं दे रही हूँ, थोड़ी मुझे दे दो, कमेंट कर दो. Follow me on Instagram, I keep on sharing a lot of content there.
So consider subscribing, not consider subscribing, it is free. So if you're watching, then please subscribe. It would make my day. And yeah, thank you, and I shall see you in the next video. Till then, bye.